ਸ਼ੀਫ ਲੈ ਕੇ ਆਣਾ। ਔਰ ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ? ਅੱਛਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਪਸੀ ਕਦੋਂ ਹੋਏਗੀ? ਅੱਛਾ ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਮਾਫੀ ਚਾਹਨਾ ਕਿ ਇਨਫੈਕਟ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਅੱਜ ਗੁਜਰਾਤ और मलिक साहब आओ 2 मिनट ਤੁਹਾਡੀ ਸੀਟ ਤੋਂ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਨਾ ਚਿਸ਼ਤੀ ਸਾਹਿਬ ਆਰਜੀ ਤੌਰ ਤੇ ਬੈਠੇ ਅਸਲ ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਸਲ ਤੇ ਆਰਜੀ ਬੈਠੇ ਸਨ ਅਸਲ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਬੈਠੇ ਯਾਮਦ ਰਵਾਨ ਨੇ ਬੈਠਾ ਯਾਮਦ ਫਰਾਨ ਨੇ ਬੈਠਾ ਨਹੀਂ ਬੈਠ ਸਹੀ ਨੇ ਤੇਵਰ ਬਦਲ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਯਾਰ ਬੜਾ ऐसे ही अख दस वैसे दाऊद साहब बैठे हैं रोशनी भाई MDA बोर्ड हाँ साउथ साहब ने आना है कि नहीं? नहीं जी ਆਮ ਬੰਦੇ ਨਹੀਂ ਦਾ ਪਤਾ ठीक है। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਸਿਲਸਿਲਾ ਕੋਰਟ ਦਾ ਜੀ। ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਰੈਫਰੈਂਸ ਵਾਲਾ जी जी ਉਹ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਤੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣਾ बिल्कुल सही है। ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਨੇ ਵੀ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਡਿਫਾਈਨ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਲਾ ਹੈ ਕੀ ਉਹ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਆਮ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਤੌਰ ਹੈ ਤੇ ਹੁੰਦਾ ਫੌਜਦਾਰੀ ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ बिल्कुल सही ਦੀਵਾਨੀ ਔਰ ਫੈਮਿਲੀ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਾਲੇ ਨਾਲ ਇਹ ਐਕਚੁਅਲੀ ਹੈ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਕਿੱਥੇ ਕਿੱਥੇ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ सही है। कुछ मुकम्मल हो गया क्वेश्चन? कुछ और ਰਿਕਾर्ड ਵੀ ਕਰ ਲਿਆ ਨਾਲ अगर जरूर होया नहीं तो कम से कम मैं ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਿਆਂਗਾ ਇਹ ਫਿਰ ਉਰਦੂ ਚ ਕੋਈ ਕਰੀਗਾ। ਚੀਜ਼ ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੈ ਨਾ ਨਹੀਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਕਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਨੀ ਇਹਨੂੰ ਆਨ ਕਰੋ ਕਾਪੀ ਬੁੱਢਾ ਸਰ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਤੋਂ ਪਤਾ ਵੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦਾ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਨਾ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਵੀ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਤਾਂ ਕਿ ਮੁਕੰਮਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਏ। ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਲਾਅ ਦੀ ਇੱਕ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ। ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਕਾਨੂੰਨ ਦੀਆਂ ਕਈ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੀ ਕ੍ਰਿਮੀਨਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਸਿਵਲ ਲਾਅ ਹੈ, ਫੈਮਿਲੀ ਲਾਅ ਹੈ। ਸੋ ਇਟ ਇਜ਼ ਵਨ ਆਫ ਦਾ ਬ੍ਰਾਂਚਸ ਆਫ ਲਾਅ ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਐਸਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨਾਲ ਹੈ। ਸੋ ਉਹ ਵਾਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਜਿਸ ਦਾ ਤਾਲੁਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੈ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ? ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਯਾਨੀ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਡਿਫਾਈਨ ਕਰ ਲਈਏ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ ਤੇ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਆਵਾਂਗੇ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾਅ ਕੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਨਰਿਟਨ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਗਰ ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦਰਜ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਮੁxtਲਿਫ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ। ਹਕੂਮਤ ਦੇ 3 ਵਿੰਗਸ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਰਲੀ ਬਿਆਨ ਕਰਨੇ ਆ। ਉਹ ਹੈ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ, ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ, ਮੁਕੰਨਨਾ, ਅਦਲੀਆ ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਇੰਤਜ਼ਾਮੀਆ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਇੱਕ ਐਸਾ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹਕੂਮਤ ਦੇ ਤਿੰਨੋਂ ਵਿੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਫਰਾਇਜ਼ ਔਰ ਆਪਣੀਆਂ ਡਿਊਟੀਆਂ ਅਦਾ ਕਰਨਗੇ, ਉਸ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਦਾ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਉਹ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿੰਨਾਂ ਇਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜਾ ਐਪਲੀਕੇਬਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਵੇਲੇ ਇਹ ਡਿਸਪਿਊਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਜਾਵੇ ਕਿ ਇਹ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ 2 ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਾਂ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਵੀ ਡਿਸਪਿਊਟ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਮਸਲਨ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਔਰ ਐਗਜ਼ੈਕਟਿਵ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਡਿਸਪਿਊਟ, ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਆਦਮੀ ਦਾ ਯਾਨੀ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁੱਕੇ ਦਰਜ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹਦੇ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ ਜਾਂ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟਸ ਕੀ ਨੇ। ਤੇ ਦੋਨਾਂ ਸੂਰਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇੰਟਰਪ੍ਰੀਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਕੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਦੂਸਰੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਮੈਂ ਡਿਫਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨੂੰ ਅਮਲ ਦਰਾਮਦ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਾਂ ਉਹਦੀ ਤਸ਼ਰੀਹ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਰੇ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਕਾਨੂੰਨ ਡੀਲ ਕਰਦਾ ਹੈ
ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਜੋ ਕੁਝ ਕਰਨੇ ਆ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਤਾ ਗਿਆ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ। ਸੋ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਸੀ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਲਾ? ਜੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸੋ ਕਿ ਸਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਹੋ ਜਾਏ ਤੁਹਾਡਾ। ਜੀ ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਹਾਲ ਨਾਲ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋਣੇ ਕਿਉਂਕਿ ਜੀ। ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਸ਼ਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਇੱਥੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਿਆ ਜੀ, ਹੋਇਆ ਹਾਂਜੀ, ਸਾਰਾ ਮੈਂ- ਮੁਲਾਕਾਤ ਵੀ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਾ ਅੱਜ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵਿਜ਼ਿਟ ਰੱਖਿਆ ਸੀ ਦੇ ਜੀ, ਚੀਫ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਰ ਜੀ। ਔਰ ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਜਨਾਬ ਇੱਕ ਜਨਾਬ ਅਸਾਸਾ ਅਜ਼ੀਮ ਨੇ ਹਸਤੀਆਂ ਸਾਡੇ ਬਿਲਕੁਲ ਜਨਾਬ ਜੀ ਮਲਿਕ ਸ਼ਾਹਿਦ ਸਾਹਿਬ। ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡਾ ਤਾਰਫ ਹੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਚਾਹਦੇ ਵੈਲਕਮ ਵੀ ਕਰਨਗੇ, ਟਵੀਟ ਕਰਨਗੇ ਜਨਾਬ ਸ਼ਵੇਦ ਮਲਿਕ ਸਾਹਿਬ। ਲਓ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ शरीफ साहब, डॉक्टर तारक शरीफ साहब, मैं थोड़ा सा माफ़ी चाहता हूँ, ये बता दूँ कि आपकी मोहब्बत की खुशबू इतनी है कि ये दोस्त तो खैर हम फैमिली के मेंबर हैं, ये कुछ मिनॉरिटी के लोग भी आए हुए हैं। ये काउंसलर है मिनॉरिटी के, और वो गुजरात का जो कदीम चर्च है, आप इधर कुछ अर्सा तैनात हैं, रोजरी हॉस्पिटल का नाम सुना है। उसका बड़ा तारीख साथ स्कॉटलैंड का जो चर्च है उसमें है वो उनके बानियों में से, तो उधर से ये तशरीफ़ लाए हैं कि नईम साहब तशरीफ़ लाए हुए हैं। तो आपको सलाम कहने की शुक्रगुज़ार हूँ कि उन्होंने हमारे दोस्त, हमारे भाई, हमारे गमगसार, हमारे साथी नईम चिश्ती की आमद का सुनकर हमारे दफ्तर में विज़िट की। बहुत मशकूर हैं। और मैं सबसे ज़्यादा मशकूर हूँ अपने भाई जो इल्म व अदब में गुजरात में एक अथॉरिटी रखते हैं, शऊर में, अदराक में, इल्म में, अदब में, खिदमत में, एजुकेशन में, प्रोफेसर शबीर साहब। तो सबसे ज़्यादा मैं उनका मशकूर हूँ कि आज उन्होंने मुझे ये अपनी सर्विस के दौरान भी इनसे मुलाकात होती रही, जब ये इधर साइंस कॉलेज में थे, अब उधर मीदा कॉलेज में हैं, यूनिवर्सिटी में थे, तो डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर थे। तो मैं रिक्वेस्ट करता था कभी हमें 2 लम्हे दें ताकि बात करें। वो तो अभी तक अधूरी है क्योंकि बात तो इनसे ही कभी होगी ज़िंदगी में। तो आज वो बहाने से तशरीफ़ लाए हैं, तो मैं उनका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। लोग तो कहते हैं मैं मशहूर हूँ, लेकिन मैं उनका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। इसलिए नहीं कर सकता कि मेरे दिल में उनका जो मुकाम है गुजरात में शायद ही कुछ गिने चुने लोग हों जिस तरह मैं उनसे मोहब्बत करता हूँ, या मेरे दिल में उनका एक मुकाम है, घर है, वो बहुत कम लोगों का है। और मैं एक लगी लिपटी से बात नहीं करता, सियासी कारकुन भी रहे हैं सारी उम्र, जब से कॉलेज से फारग हुए हैं, लिखना पढ़ना बोलना ही सीखा है। तो बहुत कम लोग हैं जिनके साथ मोहब्बत के रिश्ते हैं। उनमें प्रोफेसर शबीर साहब का भी एक नाम है, जिनको ना मिलकर भी हम उनसे मिलते रहते हैं, दिल के अंदर, आँखों के अंदर झांक कर उनको देखते रहते हैं। तो वो आज तशरीफ़ लाए हैं। मैं सबसे पहले उनका मशकूर हूँ, शुक्रिया तो अदा नहीं कर सकता, फिर भी ये दुनियावी लफ्ज़ हैं, मशकूर हूँ और बेहद मशकूर हूँ। और क्योंकि उन्होंने इधर आकर मुझे भी इज़्ज़त बख्शी और आपको भी इज़्ज़त बख्शी कि गुजरात के फ़िक्र और शऊर का एक ऐसा दरिया है जिससे लोग तशना लब इल्म के मुतलाशी लोग अपनी प्यास बुझाते हैं। बाकी दोस्त डॉक्टर तारक सलीम हैं, ये मेंबर हैं ज़िला असम्बली गुजरात के, पॉलिटिकल अथॉरिटी हैं गुजरात में, MMA से वाबस्ता हैं, जमात इस्लामी के अमीर हैं, लेकिन एक मजहबी जमात के सबसे बड़े ओहदे पर फायद होने पर उनकी सेंट्रल कमेटी के मेंबर हैं। मैं ये दावे से कह सकता हूँ कि जो लोग हमारे दरमियान बैठे हुए हैं, इक़्तिदार पसंद लोग हैं, ये इनका जुनूनी कबीले से तलक नहीं है, बहुत इक़्तिदार पसंद, बहुत इंसान दोस्तों की मसीहाई करने वाले, उनकी पुश्त के पीछे एहसास करने वाले, और दोस्तों का इस तरह एहसास करने वाले कि उनकी दिल की बातें दिल से पहचानने वाले, महसूस करने वाले, किसी की मदद करते हैं तो उसको कहने की ज़रूरत नहीं होती, वो आँख से देखकर ही पहचान जाते हैं। इस तरह जैसे कि उनके नाम के साथ डॉक्टर है, वाकई मसीहाई करने वाले इंसान हैं। तो बहुत कम दोस्त हैं मेरे इस शहर में, वैसे तो सारा जग गुजरात का जानता है खिदमत के हवाले से, कुर्बानी के हवाले से, तो बहुत कम दोस्त बनाए हैं। जो कम दोस्त हैं उंगलियों पर गिने चुने, उनमें एक नाम नईम चिश्ती का है, जिनको मैं ये कहूँ कि मेरी उनसे बचपन की दोस्ती है। जब आंख खोली थी, कॉलेज से नए नए फारग हुए थे, तो ये मैजिस्ट्रेट बनकर गुजरात में आए, मुलाकात होगी, मैं इनकी अदालत में जाता, मैं भी बड़ा यंग था, हंसता मुस्कुराता चेहरा, बड़े प्यार से इस्तकबाल करता, मुझे ये रिटायरिंग रूम में ले जाते, चाय पिलाते, बातें होती रहती, घंटों बातें होती। उन दिनों हम जज्बा मैगज़ीन निकालते थे, 15 रोज़ा जज्बा होता था, वो हम निकालते थे। तो वैसे
मैं आपको ये भी बता दूं कि नईम साहब जुडिशरी में रहे हैं, इधर मजिस्ट्रेसी में, तो ये इनके मुंह की बात नहीं, मैं पीछे भी कहता रहता हूँ, भुट्टा साहब जानते हैं, बहुत ऑनेस्ट आदमी। वो तो इनका फील्ड बताता है कि वाकई ऑनेस्ट थे, क्योंकि इन्होंने दुनियावी जाओ जलाल और मालो मता की कभी ख्वाहिश नहीं की। पढ़ने लिखने से शगफ रहा है और इसमें दिलचस्पी लेते रहे हैं। तो इधर से जब छोड़ा तो वो अकाउंट्स में चले गए, डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पंजाब रहे, फिर डिप्टी अकाउंटेंट जनरल पाकिस्तान रहे, फिर चूँकि इनके ज़हन में इल्म के मैदान फतह करने की जुस्तजू थी, वो इन्हें उधर ले गए इंग्लैंड में। वैसे इस दौरान ये बुक्स भी लिखते रहे, इनकी 2 किताबें भी आ चुकी हैं। जाकर इंग्लैंड में इन्होंने लॉ कॉन्स्टिट्यूशन में PhD की, जो कि बड़ा हमारे मुल्क के लिए एजाज़ है। उसके बाद जनाब इन्होंने किताबें भी लिखी। अब इनकी कॉन्स्टिट्यूशन पर जो बुक आ रही है, गालबन वो 4थी किताब है, वो हमारे लिए मैं समझता हूँ बड़ा एजाज़ है कि कैसा होनहार इंटेलिजेंट नौजवान जो जिसकी जुस्तजू तो दौलत इकट्ठी करने के लिए होनी चाहिए थी इस दुनियावी मालूमात के दौर में, तो सब कुछ छोड़कर एक तहकीक के शोबे को उन्होंने अपनाया। बड़े फ़ख्र की बात होती है जो लोग दुनियावी लालच को छोड़कर कौमी खिदमत के लिए एज ए वॉलंटियर खुद को पेश करते हैं, तो बड़ी बात है। मैं इनका मोतरफ तो पहले दिन से था। इन्होंने, जैसे मैं बता रहा था कि हमारा उन दिनों फोर्टनाइट की जज्बा होता था, जब भी इनके लिए कोई केस आता तो वोकला को ये कहते यार मैंने तो कुछ आपसे ना कोई लेना है ना कोई देना है, आप इस जज्बा मैगज़ीन के ख़रीदार बना देंगे, मेरे दोस्त हैं। तो उन्होंने उस दौर में हमें बड़े सैकड़ों ख़रीदार दिए, इनकी मेहरबानी से जज्बा मुतारफ़ हुआ था। फिर ये चले गए तो अल्लाह ताला ने हमें ये तौफीक दी। कोऑपरेटिव के शोबे में मेरे एक दोस्त होते थे, तो मैंने उनसे रिक्वेस्ट की, तो डेली अखबार जो है वो हमने निकाला गुजरात से। गुजरात का पहला अखबार जज्बा वो हमने निकाला, और दूसरा तस्वीर वतन, दोनों का मैं चीफ एडिटर हूँ। तो दोनों ही अखबार हमारे ऑनलाइन पर पूरी दुनिया में पढ़े जाते हैं। तो वो जो हमारी बड़ी मुख्तसर सी टीम थी, मैं था, यूसुफ भुट्टा साहब थे, राजा तारक साहब थे, तो ये चलते चलते आज भी हम खड़े हैं आपकी राहों में कि कभी आप कहीं मिलेंगे। आज अल्लाह ताला ने ये वक्त दिया। तो 25 साल का अस्ता एक जनरेशन गैप होता है, दुनिया बदल जाती है, ख्यालात बदल जाते हैं, लोग ज़ेरे ज़मीन चले जाते हैं, चले तो सब ने जाना है। तो चिश्ती साहब का ये मैं समझता हूँ कि कमाल है कि ये इन्होंने खुद ढूंढा है दोबारा में। तो बता रहे थे जब इनका फ़ोन आया तो मैं पता नहीं किस मूड में था बैठा हुआ, तो इन्होंने कहा अस्सलाम वालेकुम। रोज़ हमें सैकड़ों को टेलीफोन आते हैं लोगों के, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, फिर अस्सलाम 3 दफ़ा। मैं आख्या जी मैं कोई डोरा नहीं, मैं सुन लिया कोई गल करो कौन हो तुसी। तो आख्या मैं नहीं चिश्ती बोल रहा, सिर्फ लफ्ज़ नहीं चिश्ती। तो यकदम जो मेरा वो खुमार था, गुबार था, जो ज़हन में बात थी वो उतर गई, और दिल के दरीचे खुल गए, बचपन की यादें ताज़ा हो गई कि वो दोस्त यादों को हिला रहे हैं, इसकी चूल्हों को हिला रहे हैं। समझ नहीं आता कि फिर भी ये कैम्प है। और मैं समझता हूँ जिस तरह के रशियन दोस्त इधर आया था, तो जब वापस गया तो उसने कहा कि मैं आज यकीन करके आया हूँ कि वाकई ही दुनिया में खुदा का वजूद है। उसने, किसी ने पूछा कैसे, उनका कि हर उस मुल्क में हर शख्स उस मुल्क को खा रहा है, फिर भी मुल्क कायम है। तो ये समझ आ गई है कि वाकई खुदा की ज़ात है जिसकी वजह से ये बचा हुआ है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर ये मुल्क बचा हुआ है तो इन सास दिल लोगों की वजह से, जिनके दिल में अभी दर्द जिंदा है इस कौम का, इस मुल्क का, लोगों का, जो उनकी सिमत का तयन चाहते हैं। तो मेरे पास अल्फाज नहीं हैं कि मैं अपने इन दोस्तों को खराज तस्लीम पेश कर सकूँ। मेरे लिए तो बहरहाल ये दिन आज ईद का दिन है। ईद तो तब ही होती है जब दोस्तों की दीद होती है। तो नईम चिश्ती का वजूद, प्रोफेसर साहब का वजूद, डॉक्टर साहब का वजूद, ये मेरी दौलत हैं, माशरती दौलत हैं, जो मुझे इस माशरे में खुदा ताला ने अता की है। सदा ये हंसते रहें, मुस्कराते रहें, सदा खुदा की रहमतों के साए तले जीते रहें। मेरी दुआएं भी इनके साथ हैं और मेरी नेक तमन्नाएँ भी यही हैं। मैंने ज़िंदगी में, पूरी ज़िंदगी में, आप यकीन जानें, जो मेरे सामने जर्नलिस्ट बने हैं जिनको मैंने खुद देखा है, परखा है, ये मकबूल भट्ट साहब बैठे हुए हैं, हमारे प्रेस क्लब के जनरल सेक्रेटरी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने बड़े लोग तैयार किए हुए हैं जो आजकल गाड़ियों में फिरते हैं। शवेद मलिक गुजरात का वो अखबार नवीस है जो 2 अखबारों का चीफ एडिटर है, 2 कौमी अखबार से मुंसलिक है। 1967 जब आप कोर्ट में भी नहीं आए थे, उस वक़्त की मोटरसाइकिल मेरे पास है, आज भी वही है, और आज भी मैं उसी पर शहर से गुजरता हूँ तो लोग मुझे
आवाज़ देकर खड़ा करते हैं। इस शहर में ऐसा कोई आदमी नहीं है जो मैं गुजर रहा हूँ तो इस तरह मुंह फेर ले, बात ना करे। कभी पेट पर पत्थर रखना पड़ा तो वो भी रखा, किसी की जेब नहीं टटोली, किसी की जेब नहीं काटी, किसी को दुख नहीं दिया, किसी की पगड़ी नहीं छाली, हो सका तो किसी मजलूम के सर पर हाथ रखा, किसी मजलूम के साथ गए हैं, उसकी आवाज़ अपने कलम के ज़रिए भी बुलंद की है, अपनी ज़बान के ज़रिए भी, तहरीर के ज़रिए भी, तकरीर के ज़रिए भी, अपने असर रसूख के ज़रिए भी। यही फ़र्ज़ मैं समझता हूँ जो कौम बसीयत एक कौम के फ़र्द को खुदा ताला ने हमें सौंपा है, उसको उस पर पूरा उतरने की कोशिश करते रहे हैं और करते रहेंगे। मैं मौजू से हट गया था, फिर आता हूँ और वाइंड अप करता हूँ कि आज का दिन दीद का दिन है, ईद का दिन है, क्योंकि जब दोस्तों की दीद होती है वही ईद होती है, वही खुशियों का मौका होता है और वही लम्हे ज़िंदगी के यादगार लम्हे होते हैं। क्योंकि मैं ये समझता हूँ कि जब दोस्त मिलते हैं, बैठते हैं तो मेले बनते हैं, मेले सजते हैं, ये मिलन के मेले होते हैं। जब मिलते हैं तो सजते हैं, जब मिलते हैं तो बनते हैं, जब दोस्त ना हो तो ये दोस्तियाँ परवान नहीं चलती। खुदा ताला आप सबको, मेरे दोस्तों को, तीनों को जिनका मैंने जिक्र किया है, ये माशरे में फलते फूटते रहें। हमारा सरमाया है, हमारे शहर के करीम हैं। आप लोग सदा मुस्कराएँ, सदा आपको अल्लाह ताला अपनी पनाह में रखे। मैं मशकूर हूँ नईम चिश्ती साहब का कि उन्होंने इंतहाई मुख्तर वक्त जो पाकिस्तान में ये एक हफ़्ते के लिए तशरीफ़ लाए, उनमें एक हफ़्ते में से एक दिन हमें दिया और बाकी ये अपनी मसरूफ़ियात में वक्त गुजार रहे हैं। प्रोफेसर शबीर साहब का भी कि उन्होंने मेरी बड़ी पुरानी ख्वाहिश की आज तकमील की, वो तशरीफ़ लाए। डॉक्टर तारक सलीम साहब का, जिन्होंने मेरा हर दुख हर सुख खुद ही बांटा है मेरे कहने के बगैर, तो मैं मशकूर हूँ। मेरे पास अल्फाज नहीं हैं शुक्रिया अदा करने के, वैसे भी करना भी नहीं चाहिए, ये तो दोस्तों पर वाजिब होता है एक दूसरे का ख्याल करना, दुनियावी लिहाज अल्फाज हैं। तो मुझे आप मेरा फ़ख्र हैं, आप मेरा मान है। खुदा ताला आपको सलामत रखे। मैं इन अल्फाज के साथ टोटा साहब से दरख्वास्त करूँगा कि प्रोफेसर शबीर साहब वो गुजरात का फ़ख्र हैं, मान है, उनको कुछ वक्त मिलना चाहिए कि हमें उनकी सोबत में बैठे हुए हैं। क्योंकि अच्छे दोस्तों की सोबत में जब बैठे तो मैं समझता हूँ कि उनकी दोस्तों में बैठना उस अहद में वो काम गनीमत होते हैं, वो लम्हे गनीमत होते हैं। हमें तो ये बड़ा फ़ख्र है, एहसास है कि हम ऐसे लोगों के अहद में ज़िंदा हैं, मौजूद हैं, जो लोग अहलियत रखते हैं। तो यो मैंने गलत नहीं कहा कि ऐसे लोग इस स्टेट का पिलर हैं और इनकी वजह से ही ये स्टेट अभी तक कायम है और चल रही है। खुदा ताला इनको भी और हमारे मुल्क को भी सलामत रखे। तो बहुत मशकूर हूँ एक बार फिर। नहीं साहब, मैं आपका शुक्रिया अदा नहीं कर सकता। ये ज़िंदगी रही तो होता रहेगा, अमल से भी, दिल से भी, खिदमत से भी, प्यार से भी, मोहब्बत से भी। तो मैंने आपको कहा था कि हम तो सोनी के शहर के लोग हैं, तो कोई एक बार हमसे प्यार की पींगें बढ़ा ले तो हमने कभी मोहब्बत की वो जो है ना डोरी टूटने नहीं दी। हम तो कच्चे पर तार के पीछे जाने वाले हैं। तो इंशाल्लाह आपके पीछे आते रहेंगे, आप पीछे हैं, आपके साथ हैं, आपके साथ रहेंगे।